روزانہ سب امام حسین ہمیں مل رہا ہے. آج اس بزم کی آخری بزم یہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے یہ 10 روزہ کی آخری بزم ہے. ان کی بزم تو قیامت تک سکتی رہے گی اور ان کا نام قیامت تک مل نہیں سکتا. زمین پر تھے تو سنتے رہو گے، جب جنت میں جاؤ گے بھی تو ان کا چرچا سنو گے. اور میں اپنے عمر کے خلاف کرسی سے ضرور بیٹھا ہوں، لیکن ہمارے برادری کی عظیم بڑی شخصیت، علم فقہ میں مہارت رکھنے والی ذات حضرت اسلم ربانی، مولانا اسلم ربانی صاحب کی بلا جلوہ فروز ہیں، جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں. عالم نہ عالم کی شناست، عالم عالم کو پہچانتا ہے، فقیہ فقیہ کو پہچانتا ہے. لیکن ہم کوئی فقیہ نہیں ہے، طالب علم ہے. حضرت کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں اپنے گھر والوں سے. اللہ رب العزت ایسی شخصیتوں کا سایہ ہمیں سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور جتنے حاضرین یہاں پہ حاضر ہیں، اللہ سب کی حاضرین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی 15 سے 20 دن پہلے آندھی آئی تھی، جو اچانک سے آئی تھی، اس کا کوئی علم نہیں تھا کسی کو، اور وہ آئی تو اتنی سخت آئی کہ نہ جانے کتنی چیزوں کو تباہ و برباد کر کے وہ چلی گئی. یہاں پر امام حسین کے محبوں کی آندھی ہے، اور ایک محرم الحرام سے لے کر کے آج 9 تک الحمدللہ 10ویں محفل سجی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں شروع سے آخر تک کہ تعداد میں کوئی بھی الحمدللہ کمی نہیں آئی. اور یہ بڑی عظمت و رفعت کی بات ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ جس انداز میں وہ تقریر اور اپنے اسلاف کے بیانات کو سن رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بھی جو اپنی زندگی حضرت زینب کی زندگی کے مطابق گزاری، حضرت فاطمہ الزہرا کے اپنی زندگی ان کے مطابق گزاری. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تصویر ہم صرف یہیں پر بول رہے ہیں، کبھی دن میں یہاں کبھی وہاں، تو آواز کا بھی ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. خیر نکل رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے. اور اگر ہماری شریر حافظ ناظم صاحب جیسی ہوتی یا جیلانی صاحب جیسی ہوتی تو روزانہ ایک کرسی شہید ہوتی، روزانہ ایک کرسی شہید ہوتی. لیکن الحمدللہ کبھی کبھی جلسوں میں تو ایسا ہوا کہ ہمارا وزن کم ہے، صوفے کا وزن زیادہ ہے. ایسا بھی معاملے پیش آتے ہیں. اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے ان کو صحت یاد رکھا. انہی کے سب کے توسل سے ہم کو بھی کچھ صحت عطا فرمائے. درود پاک پیش کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر خاکہ دے رہا ہوں کہ پوری دنیا کا وجود مصطفیٰ جان رحمت کی نور سے ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری،
अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर से जमीन बनी, जन्नत और दोज़ख बने, फरिश्ते बने और बन रहे हैं। पूरी दुनिया का वजूद हुआ, हत्ता कि हमारा उसी नूर से वजूद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, 1,24,000 2,24,000 अंबिया कमोबेश उनकी ज़ुर्रियत में बने, पैदा हुए, जू बजू जिंदगी बढ़ती रही, यहाँ तक कि आलम रसूल अकरम की जात तक आ गया। नबी की जात के बाद खिलाफत के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जात को मुलाहजा किया आपने नबी की सीरत के बाद। उसके बाद आपने फारूक आज़म की अदालत के पैकर को जाना, हज़रत उस्मान गनी के सखावत का इल्म रखा, हज़रत अली की शुजाअत देखी आपने, हज़रत हसन और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान में जो सुलह हुई आपने उसको भी मुलाहजा फरमाया। यजीद तख्त नशीं है, आपने उसको भी मुलाहजा फरमाया। उसने क्या क्या अंजाम दिए हैं मामलात को, आपने उसको भी बगौर समाप्त किया है। उसके बाद इमाम हुसैन ने अपने भाइयों को भेजा, कूफा की सरजमीन पर जाओ, हालात दरियाफ्त करके आओ कि मामलात क्या है। आपने ये भी मुलाजा कर लिया कि उनके भाई को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत कैस इब्न कैन को भेजा गया, वो भी शहीद हो गए। हत्ता कि ये मदीना से मक्का आया और मक्का से जो है सफा, सफा से सालबिया, सालबिया से बनु कसर, कसर बनी, तमाम इलाकों से होता हुआ ये हज़रत हुर के निगरानी में ये करबला के मैदान में पहुंच गया। और आपने ये भी मुलाहजा कर लिया करबला में तो कितने अफराद की शहादत हो चुकी। हज़रत जाफर इब्न मुस्लिम, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, हज़रत जाफर इब्न अकील, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अकील, हज़रत मोहम्मद इब्न अली, हज़रत उमर इब्न अली और अब्दुल्ला इब्न वहब कल्बी, ये तमाम लोग करबला की सरजमीन पर क्या हो चुके, शहीद हो चुके। और उसी आलम में करबला की सरजमीन पर आपने इस बात को भी मुलाहजा कर लिया कि हज़रत अब्बास और मोहम्मद, हज़रत कासिम की जवानी, हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर तमाम के तमाम शहीद हो चुके। ये वही रात है करबला की आखिरी रात थी इमाम अली मकाम। नबी मुहर्रम की तारीख, नबी 10वीं तारीख और रात थी। इमाम अली मकाम करबला की सरजमीन पर है। यजीदियों ने ये सोचा कि इमाम अली मकाम लाश उठा उठा के थक चुके हैं, अली अकबर की जवानी उठ चुकी, हज़रत कासिम की जवानी खत्म हो चुकी, हज़रत अब्बास जैसा चराग जमीन से बुझ चुका है, हुसैन तने तन्हा है। अब हुसैन जो है बैत कर लेंगे, लेकिन इसी आलमिया में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की सरजमीन पर आए और आने के बाद जो है आपने चाहा कि मैं वादा करूं, लेकिन आपके बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो 22 साल की उम्र में थे, नकाहत के आलम में, बीमारी के आलम में बिस्तर से उठ न सके, लेकिन फिर भी किसी तरह सहारा लेकर के उठे और भारा लेके इमाम अली मकाम की वारदाह में हाजिर हो गए। यह करबला की 10वीं तारीख थी मुसलमानों। करबला का कंकर कंकर कांप रहा था और सूरज अपने नेज़े पर था। उसी आलम में इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन आए और कहा कि ऐ वालिद मोहतरम, मुझको करबला की ज़मीन पर जाने की इजाजत मरहमत फरमाई जाए। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मैं तुमको करबला की सरजमीन पर कैसे भेज सकता हूँ? जितना सैयदों का नस्ल था तमाम का तमाम शहीद हो चुका।
اللہ اکبر، تمام قربا یزیدیوں کی تلواروں سے ٹھنڈا ہو چکا، لیکن اے زین العابدین تم پر میری نسل کی بقا ہے۔ اے زین العابدین تم نانا جان کی نسل کو آگے بڑھاؤ گے، میری نسل کو آگے بڑھاؤ گے۔ اللہ اکبر، تمہیں کربلا کی سرزمین پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے زین العابدین اگر تم چلے جاؤ گے تو بیویوں کو کون سلامے گا؟ اے زین العابدین اگر تم چلے گئے تو میری سکینہ کا کیا ہوگا؟ اے زین العابدین اگر تم چلے گئے تو تمہاری ماں حضرت شہربانو ام رباب اور جو جب ان کو قید کر کے لے جایا جائے گا تو ان کے ساتھ کوئی محرم باقی نہ ہوگا، کون عالم گزارے گا؟ حضرت زین العابدین کی امام عالی مقام خیمے میں لا کر کے لٹا دیا۔ بخار اتنا ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں حضرت زین العابدین۔ کربلا، تاجدار کربلا حسین، ذات حسین کربلا کی سرزمین پر ہے، تاجدار کربلا ہے، نبی کا نواسا کربلا کی سرزمین پر ہے۔ اسی عالم میں امام علی مقام اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما ہوئے، صندوق کھولا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال آپ نے لی، حضرت جعفر بن طیار کا بھالا آپ نے لیا، اور نانا جان مصطفیٰ کا امامہ اپنے سر پر باندھ لیا، مولا علی کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں امام حسین لے کر کے کھڑے ہوئے۔ ذرا سوچو ذرا کہ حسین ایک ذات ہے جس کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو آنکھ ہیں، وہ حسین کربلا کی سرزمین پہ جب اپنے خیمے سے نکلتے ہیں بیویوں کو آخری سلام کہا، اور کربلا کے اندر کوہرام مچ چکا ہے، نونہال شہید کر دیے گئے۔ امام علی مقام کی بیویوں کو یہ معلوم ہے کہ جب وہ 6 مہینے کے بچے کو قرض نہیں کھا رہے ہیں تو یہ نبی کے نواسے پر قرض کیا کھائیں گے؟ اللہ اکبر، امام حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے گھوڑے پر ایک چاند کی طرح سوار ہوئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے مسلمانوں، وہ کیسا وقت رہا ہوگا جو قریب الظہر ہے، شام غریبہ ہے۔ اسی عالم میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے امامے کے بیچ میں چاند سما گیا۔ وہ حسین، اس کے چہرے کا عالم یہ تھا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ رہی تھی۔ امام علی مقام جب اپنے گھوڑے کو اشارہ فرمایا کہ چلو، لیکن گھوڑا قدم آگے بڑھا نہیں رہا۔ امام حضرت جلال الدین الجدی فرما رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب امام علی مقام نے نیچے دیکھ کر دیکھا تو حضرت سکینہ امام حسین کی گھوڑے کو قدموں کو پکڑ لی۔ وہ سکینہ جن کو حسین کے سینے کے علاوہ نیند کہیں نہیں آتی ہے، اللہ اکبر، وہ تاجدار کربلا، نبی کا نواسا جس کو آج پوری دنیا مان رہی ہے، اور جنہوں نے اپنی جان کو اسلام پر فدا کر دیا، آج پوری دنیا کے لوگ اپنی ذات کو حسین پر فدا کر رہے ہیں، حسین پر قربان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک کربلا کے اونچے مقام پر اپنے گھوڑے کو لے جا کر کے روک دیا اور ارشاد فرمایا، اے یزیدیوں، اے امر بن سعد، اے کلی، اے عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں، اے یزید کا نمک کھانے والوں، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کیا، میں نے برداشت کیا، تم نے میرے علی اصغر کے خانہ
سے تین مارا، میں نے اس کو برداشت کیا. تم نے میرے بھائی عباس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، میں نے معاف کیا. لیکن اے لوگوں، تم نے میرے 72 نفوس کو جو ہے قربان کر دیا. 56 افراد کو میں نے سینے کو پتھر رکھ دیا. لیکن اے لوگوں، تم نے ان کو قتل کر دیا تو قتل کر دیا، لیکن حسین تک پہنچنے کی دیری مت کرنا. یہ حسین ہے جس کی ذات کی بقائیت پر اسلام ہے. وہ حسین جس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے. وہ حسین جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوان مردوں کے سردار. اللہ اکبر. جو قیامت کا منظر ہے کربلا میں، امام علی مقام فرما رہے ہیں، آؤ اب میں تمہارے لیے دامن کو پسار رہا ہوں. آؤ، تم نے میرے علی اصغر کو قتل کر دیا تو کیا ہوا؟ آؤ توبہ کرو. تم نے علی اصغر کی جوانی لوٹ لی، آؤ حسین کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ابھی بھی میں تمہاری بخشش کے لیے کافی ہوں. میں نانا جان مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو ہے عرض کروں گا، وہ شفاعت فرما دیں گے. وہ تو رؤوف الرحیم غفور الرحیم ہے مصطفیٰ. اللہ اکبر. اسی عالم میں یزیدیوں کا دل پتھر بن چکا، اور جب ان کا دل پتھر بن چکا تو کسی نے کہا کہ آواز دے کر کے کہا کہ اے حسین ابن علی، ہم نے تمہیں یہاں پر خطاب سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے. اگر تم امیر المومنین معاذاللہ یزید کے خلافت کو منظور کرو تو تمہارا استقبال ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حیدری کچھار کے شیر ناب کو للکارا جا رہا ہے، امام حسین کو للکارا جا رہا ہے. اس عالم میں ایک یزیدی نے تیر کمان پہ رکھ کر کے اس طرح چلائی کہ امام حسین کے کان کے پاس سائیں سے گزرا وہ ڈراتے ہوئے حیدری کچھار کا شیر ناب کا خون جوش مارنے لگا. وہ کربلا کا میدان سوچئے ذرا مسلمانوں اس عالم کو کہ جہاں پر ان کے بیٹوں کی جوانی لٹ رہی ہو، جہاں پر معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کی سرزمین پر کود پڑے امام علی مقام. اور اس کے بعد جب کربلا کی سرزمین میں آپ تاجدار کربلا نبی کا نواسہ موجود ہے، اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تمیم قحطہ ہے، اور وہ آیا جس کے بہادری کا عالم پورے مصر، کوفہ اور دمشق کی سرزمین پر آیا. اور اس کے بعد وہ آیا، اس نے اپنے تاریخی کلمات بولے، اور بولنے کے بعد اس نے یہی جملہ کہا کہ اے حسین، تم جو ہے میرا مقابلہ مت کرو، بلکہ میں نہ جانے کتنی جنگوں کو شکست دی ہے. اے حسین، تم میرے مقابلے میں نہ آؤ. لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ علی کا شیر کھڑا ہے کربلا کے میدان میں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جب اس نے تلوار چلائی، امام حسین نے اس کی تلوار کے پاس روکا. اس کے بعد آپ نے تلوار ذوالفقار کو اٹھا کے اس کے تن پر ایسا مارا کہ زمین پر تڑپتا ہوا گر گیا. امام حسین کربلا کی سرزمین پر 4 افراد اور آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ جھپکتے ہی زمین پر گرا دیا. اللہ اکبر. حیدری کچھار کا شیر ناب جب تلوار چلا رہا تھا تو عالم کربلا کا دیکھنے لائق تھا. تو کربلا کا منظر کہ بلید ایک شخص کو بھیجا گیا اور کہا کہ کربلا میں چن چن کر کے بہادروں کو رکھا گیا تھا کہ جب حسین آئے تو تم نے ان کا مقابلہ کرنا. جب حسین آئے تو ان کا مقابلہ تم کو کرنا ہے.
उन बहादुरों को चुन चुन करके भेजा जा रहा है। इमाम हुसैन चुन चुन के शहीद पड़ रहे हैं। इमाम हुसैन ने जब उनके तमाम बहादुरों को जो है कत्ल कर दिया, उसके बाद इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जब आप लड़काती है, किसी यजीदी के अंदर ताकत नहीं है कि हुसैन इब्न अली का मुकाबला करे, ताजदार करबला का मुकाबला करे। आप अपने घोड़े को लेकर के यजीदी लश्कर में घुस गए और शहर का मचा दिया करबला की सरजमीन पर। अगर वो घोड़ा जो है मैमना की तरफ घूम रहा है तो तुझसे की दुरुस्ती ढेर लगती चली जा रही है। अगर मैसमा की जानिब घूम रहा है तो तुझसे की दुरुस्ती ढेर लगती चली जा रही है। अनामी में जा रहे हैं, आग में जा रहे हैं, लाशों का अंबार लगता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम साथ साथ फरमा रहे हैं, और तुम्हारे माफी का वक्त करीब है, और तुम्हारे जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे का दामन जो है फैला हुआ है, और तौबा करने अभी बख्शिश का वक्त है, और तौबा करने तुम्हारे तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन वो शकील कल्ब जिनके दिल पर जो है माल दौलत की मोहर लग चुकी थी, उन लोगों ने कहा कि हम जो है आपकी कोई बात को तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, कोहराम मचा है करबला में। और आमिर इब्न साद ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि एक ही शख्स 22,000 लश्कर जर्राद से कत्ल कर दे। तारीख में देखना चाहे तो कहीं 22,000 का लश्कर यजीद कत्ल कर दिया तन्हा हुसैन ने। तो उन लोगों ने कहा कि यकदार की हमला करो, ताजदार करबला मदीना की करबला की सरजमीन पर इमाम अली का। सोचिए जरा उस डाकुआ से 1400 साल पहले 7 हिजरी का वाकया, और इमाम अली मकाम पर इस कदर तीरों की बौछार की गई, तलवार रुक गई, निडाल होकर ताजदार करबला जमीन पर तशरीफ लाए और पूछा तो वक्त क्या है। नमाज का वक्त था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सरे मुक़द्दस जो है तमाम लश्कर यजीदी में कोहराम मच चुका है, इमाम हुसैन के पास आने के लिए तैयार नहीं है। इमाम अली मकाम सजदे की हालत में है, नमाज पढ़ रहे हैं, और तमाम यजीदियों के अंदर इस बात का खौफ था, अल्लाह अकबर, कि अगर हुसैन कहीं सजदे से सर उठा लेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, क़यामत शुरू आ जाएगी। अल्लाह अकबर को शिम्र बिन जौशन इमाम अली मकाम की पीठ पर आकर के सवार हो गया, और उसने अपना खंजर निकाल कर बेदर्दी के साथ इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला का मैदान खाली हो चुका है, और इमाम अली मकाम ताजदार करबला करबला की मैदान में शहीद हो चुके, और सनसनी फैल चुकी क़यामत में। करबला के मैदान में कंकर रो रहे हैं, पत्थर रो रहे हैं, आसमान रो रहा है। वो नबी का नवासा जिसकी गर्दन को यजीदियों ने काटा, कभी उसी गर्दन को नबी चूमा करते थे। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया, वक्त गुजरा, असर का वक्त आ गया, वक्त मगरिब आ गया। अब यजीदी तन्हा खड़े हैं करबला में, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मुबारकबादियां दे रहे हैं कि हमने जो है माज़ल्ला बागी को कत्ल कर दिया है। उसी आलमिया में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा गया कि अगर जिंदगी में इमाम अली मकाम ने अपने हाथ को हमारे बैत के लिए नहीं दिया, यजीद के शर्त आ चुका है हमारे खेमे में, लेकिन जाओ इमाम अली मकाम का हाथ करके लाओ। जब गए
اللہ نے امام حسین کی لاش کو یزیدیوں کی آنکھوں سے اوجھل فرما دیا، آنکھ نہیں دکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب رات کا عالم ہوا، یزیدی بڑھے 22,000 کا لشکر جراح کربلا کی سرزمین میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف جب کربلا کے میدان میں سنسنی پھیل چکی، شہادت ہے، قبر بن چکی ہیں، بیویاں ہیں، نقاہت کے عالم میں حضرت زین العابدین ہے، رات کے عالم میں اللہ اکبر۔ ان یزیدیوں نے جب وہ پڑھے صبح کے چٹیل دھوپ میں تو بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی، یزیدیوں نے آگ لگا دی، بیویوں کو مجبور ہو کر کے خیموں سے باہر نکلنا پڑا۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آگ سے اپنی جان کو بچا رہا ہے، لیکن اسی عالم میں حضرت زینب 22 سال کے نوجوان حضرت علی حضرت زین العابدین کو گھسیٹتی ہوئی آگ سے باہر لا رہی، نہیں وقت گزرا، آگ نہ چکی، رات آسمان کے نیچے گزاری گئی۔ ان یزیدیوں نے بیویوں کی ذات پر ایسا حملہ کیا کہ کان کی پالیاں نوچ لی، ظالموں نے خون بہ چلا تھا ان کے کانوں سے، لوٹ لیا امام حسین کے خیموں کو، لوٹ لیا بیویوں کی جو ہے خیموں کو۔ اس کے بعد آئے حضرت زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی، حضرت زینب کو باندھ دیا گیا، سکینہ کو باندھ دیا گیا، تمام بیویوں کو حضرت زین العابدین کی سربراہی میں ان کو جو ہے اٹھایا گیا۔ کربلا کا وہ میدان اور کربلا سے کچھ پہاڑیوں کے پیچھے ایک قبیلہ بنی اسد تھا۔ وہ قبیلہ جب ان یزیدیوں نے ان لوگوں کو باندھ دیا کہ اب ان لوگوں کو ہم لے چلے، تو قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے کربلا کی سرزمین پر، اور صبح کے سویرے ان یزیدیوں نے تمام اپنے قتل ہونے والے مقتولوں کو اٹھا کر کے انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھی ان کو اور وہیں پر دفنا دیا، لیکن اہل بیت اطہار کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ اور وہ قبیلے بنی اسد کے لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے قبر کھودی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پڑھی، اس کے بعد ان کو دفن کروا دیا گیا۔ لیکن جب ان کو اونٹ کی ننگی کوہانوں پر نہیں بٹھایا گیا، پیدل ایک ایک رسی میں باندھ دیا گیا اہل بیت اطہار کو، حضرت زین العابدین کو، حضرت سکینہ کو، ام رباب کو، حضرت شہروانوں کو، تمام لوگوں کو باندھ دیا گیا اور خبر بھیج دی گئی کوفہ کی سرزمین پر کہ مبارک ہو عبداللہ عبید اللہ بن زیاد، یزید کے مخالف آ رہے ہیں معاذ اللہ، یزید کے باغی آ رہے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن اللہ اکبر، ذرا سوچئے مسلمانوں، جب یہ قبیلہ، جب اللہ اکبر یہ قافلہ جب خیمے کے قریب پہنچا کوفہ کے شہر پہ، تو گلیاں سجائی جا رہی ہے، تخت تاج رکھے جا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، یزید کے مخالف آ رہے ہیں، یزید کے باغی آ رہے ہیں، اے لوگوں اپنے کوٹھوں پر سوار ہو جاؤ، اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کر کے پتھر لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، ان پر پتھر برساؤ۔ لیکن اللہ اکبر، وہ کوفہ کے ظالم لوگ جو حضرت مسلم کو شہید کیا، ان کے دو بچوں کو شہید کیا، وہ غدار جنہوں نے 40,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیعت سے منکر ممکن ہو گئے، اس کے بعد بھی حضرت اللہ اکبر وہ لوگ اپنے اپنے چھتوں پر سوار ہو گئے۔ یہ جب داخل ہوئے، بیویوں کے سروں کو توڑیاں کھینچ لی گئی، اور یاد رکھیے اس عالم میں ان لوگوں نے پتھروں کو برسایا، بیویوں کو
मारा जा रहा है, लोग हंस रहे हैं, पहचान मच रहा है। उसी आलम में क्या देखते हैं कि एक ज़ईफ़ा अपने घर के दरवाजे से निकली और अपने कनीज से कहा कि ले जाओ, मैं देख रही हूँ कुछ बेटियां आ रही हैं जिनके बालों जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं है, भूख और तबाहत से नकाहत से उनका जिस्म कमजोर पड़ चुका। उसके बाद उन्होंने भेजा तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि किसने भेजा है, बुला करके लाया गया। उन्होंने बताया अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि आखिर ये बताओ तुम कौन हो और ये मामला तुमने आज तक कोई हमको करबला की सरजमीन से किसी ने हमको पानी के लिए नहीं पूछा है, किसी ने हमको खाने के लिए नहीं पूछा, लेकिन आप हमको ओढ़नी दे रही है, खाना पीना की चीजें दे रही है। कुरान गायबन उनका नाम फिजा था, शीरी था। उन्होंने कहा कि मैं कभी मदीना की सरजमीन पर हज़रत फातिमा ज़हरा की कलीस हुआ करती थी। उन्होंने ये ऐलान मुझसे ये कहा था कि जब कूफा की सरजमीन पर कभी कैदी देखना तो उनको जो है खाने पीने की चीजें दे देना। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि तुम बहुत अच्छे वक्त पर आई हो, उस फातिमा ज़हरा की बेटियां हम हैं और उनके नवासे हज़रत ज़ैनब ये है। अल्लाहु अकबर। उनके पोते की सरजमीन पर यह का लूटा काफिला जब चला उबैदुल्लाह ने ज़ात के दरबार में आया, लोग हंस रहे हैं ताकि उबैदुल्लाह ने ज़ात खुश हो जाए, लोग खुशी मना रहे हैं ताकि उबैदुल्लाह ने ज़ात हमको इनाम दे दे। जब इस उबैदुल्लाह ने ज़ात के दरबार में हाजिर किया गया, बीवियां हाजिर हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा ऐ यतीमियों, अपनी आंखों को नीचे कर लो वरना कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। उबैदुल्लाह ने ज़ियाद कि प्यास इमाम हुसैन का सरे मुक़द्दस तख्त में सजा करके लाया गया और ये कहा गया अल्लाहु अकबर। उसने छड़ी उठा के इमाम हुसैन के लबों पर मारने लगा। गालिबन रिवायत में आया कि वहां पर एक सहाबी हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म मौजूद थे, बूढ़े सहाबी। उन्होंने कहा कि तुम उस होठ पर छड़ी मार रहे हो तो जिन होठों को कभी मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है, वो नबी का नवासा जिसके गर्दन पे तलवार चला दी गई लेकिन उसके होठ पर भी छड़ी मारी जा रही है जिससे कुरान की आवाज आ रही है। और यहाँ पर एक खत लिखा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह माज़ल्ला ऐ यज़ीद खलीफा, हमने तुम्हारे बागियों को जो है कत्ल कर दिया है। और अब इसका मामला क्या है, हम इस काफिले को दमिश्क की सरजमीन पर भेज रहे हैं और कम से कम 1 महीना तक यह बैत का नुफूस कूफा की सरजमीन पर मौजूद रहा और ऐसे कैसे से कैद खानों में डाला गया जो कुएं से ज्यादा गहरे थे और इन पर ऐसा जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया। उसके बाद जो कूफा की सरजमीन पर हज़रत नुमान इब्न बशीर जो सहाबी रसूल भी हैं और मोहब्बत अहले बैत जो इकरार करदा भी हैं, उनकी सरबराही में ये कहा गया कि इन लोगों को तैयार करो। तैयार करने के बाद इन सबको दमिश्क की सरजमीन की तरफ भेजो। गए, ऊँट की नंगी कुहानों पर बिठा दिया गया। कई दिन के भूखे और प्यासे ये नफूस अहले बैत बीवियां चल रही है, ऊँट के नंगी कुहानों पर बिठा करके कई दिन का अरसा गुजारने के बाद ये काफिला कहाँ पहुंचा,
ये काफिला दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचा। जब ये काफिला दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचता है, उसके करीब होता है, तो दमिश्क में ऐलान करा दिया जा रहा है कि याद रखो मोमिनो, यजीद के बागी आ रहे हैं, यजीद के दुश्मन आ रहे हैं, यजीद के खिलाफ बोलने वाले आ रहे हैं। तमाम लोगों ने गलियों को सजा लिया है, गली सज चुकी है, लोग खड़े हो चुके हैं, बीवियों को इज्जत का जनाजा निकालना चाह रहे हैं, और जिनके कभी चेहरे को किसी ने नहीं देखा, उन यहूदियों ने इनके सरों से तो पत्ता खींचा है। उसके बाद जब ये जो है जब ये काफिला जब दमिश्क की सरजमीन में दाखिल हुआ, और जब दाखिल होने के बाद उन लोगों ने शब्द शिकम करना शुरू कर दिया, और कुछ देर के बाद ये रिवायत में ये भी आया कि रास्ते में जब ये कूफा की सरजमीन से ये काफिला निकला, जब निकला एक राहिब पादरी से मुलाकात हुई। उसने 10,000 दिरहम के बदले इमाम अली मकाम के सरे मुकद्दस को एक रात के लिए रोक दिया। उसके बाद जब वक्त पूरा हो गया तो सरे मुकद्दस को दे दिया गया। जब ये आगे बढ़े, इन्होंने कहा कि लाओ मालो जर मिला है तकसीम कर लिया जाए, लेकिन जब उन्होंने खोला तो वो लाने उन जो है 10,000 दिरहमों दरानीम को कंकर बना दिया। और उसके बाद जब ये काफिला आगे बढ़ता चला गया तो नेज़ों से कुरान के लगे मुकद्दस से कुरान की आवाज आ रही थी, और न जाने कितने अफराद रास्ते में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कलाम मुकद्दस को सुन के कलमा पढ़ते मुसलमान होते और क़िताल किया, शहीद पे हुए। और उसके बाद ये काफिला दमिश्क की सरजमीन पर घुसा। जब गया दमिश्क की सरजमीन पर, जिनके बारे में आज नासिबी खारजी ये जुमला बोला करते हैं, वहाबिया बयाबना में ये जुमला बोला लिखा कि हुसैन को तो जो है जब उन्होंने लाशें सरे मुकद्दस को देखा तो यजीद की आंखों से आंसू आ गए। मामला बताइए जरा, इसको लिखने की जरूरत क्या थी? और कहा गया कि यजीद बहुत ज्यादा नाराज हुआ, ये भी जुमला आया किए गए। लेकिन मुझको बताओ जरा, दमिश्क की सरजमीन पर उसने इतना ही नहीं किया, इमाम हुसैन के लबे मुकद्दस पर उसने भी छड़ी मारी और कैद में डलवा दिया गया। अहले बैत को, हज़रत सकीना को कैद में डाला गया। तो एक दिन क्या हुआ कि यजीद ने हज़रत ज़ैनुलाब्दीन को बुलाया कि आओ। हज़रत ज़ैनुलाब्दीन आए और उसने कुछ नर्म बातें की ताकि ये हो जाए कि यजीद इमाम हुसैन के कत्ल में शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि हम आपको मदीना वापस भेजेंगे। हज़रत नुमान इब्न बशीर की सरबराही में सुबह के सवेरे ऊँट तैयार किए गए, लेकिन ऊँट पर कजावा नहीं लगाया गया, घोड़े पर कजावा नहीं लगाया गया। तने तनहा ऊँट की नंगी कुहानों पर इन बीवियों को बिठा दिया गया। और जब बारी आई कि हज़रत सकीना कहाँ है, बुलाया जाए, हज़रत सकीना जब उनकी तरफ गए, जब कैदी का दरवाजा कैद खाने का खोला गया तो क्या देख रहे थे? हज़रत सकीना इंतकाल फरमा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सकीना जिनको इमाम हुसैन के क्रोध के अलावा नींद न आई, उसी सकीना को तनहा कैद में डाला गया। अल्लाहु अकबर। हज़रत सकीना का तोहफा हज़रत दमिश्क की सरजमीन पर इंतकाल हो गया और उनको तस्लीम फरमा दिया गया। नंगी कुहानों पर भेजा गया मदीना। कई दिनों के बाद जब ये लुटा हुआ काफिला जब मदीना की सरजमीन पर पहुंचा तो अल्लाहु अकबर, मदीना के अंदर कोहराम बरपा हो गया। मदीने के हर शख्स के आंखों में आंसू है, बच्चा है रो रहा है, औरत है रो रही है, कनीज है रो रही
हुआ सर जो 72 का नफूस निकला था मदीने से, लेकिन आ रहा है उसी को 10 से 15 सहाब आ रहे हैं और तमाम लोग के साथ कोई नहीं है। उसी आलम में जब इनको मदीना की सरजमीन पर लाया गया और यजीद जब मदीना की सरजमीन पर आकर के ज़ैनुल-आबिदीन ठहर गए और तमाम अफराद, इसके बारे में जुमला ये कहा गया जो किताबों में मरहूम है और ये लिखा गया कि यजीद को जो है कातिलाने हुसैन का बड़ा गम था और बड़ा रोया, बड़ा नाराज हुआ। मुझको बताओ जब वो नाराज हुआ था तो एक शख्स अम्र इब्न वलीद के जो है सरबराही में 12,000 का लश्कर तैयार किया उसने और कहा कि जाओ मदीना और मक्का में तबाही बचा दो। ये 12,000 का लश्कर अभी करबला से इनकी प्यास नहीं बुझी थी। ये गए और कई दिन के बाद जब ये मदीना में घुसे, अल्लाह अकबर, इस कदर इन्होंने तबाही बचाई कि घर बारों में आग लगा दी। मस्जिद नबी में घोड़े बांध दिए। 3 दिन तक सहाबा ने मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ी। मस्जिद नबी के मिंबरों में हराम में आग लगा दी 12,000 के लश्करियों ने और बीवियों पर जुल्म किया गया। हज़रत अल्लामा इब्न अबी शामी अपनी किताब लतीफ़ुल अहकाम में इरशाद फरमाते हैं कि यजीद की दौरे हदी में अल्लाह अकबर 1,000 बीवियों के कत्ल से नाजायज बच्चे पैदा हुए। तो यजीद जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हो चुका, उसके बाद जब ये लोग मदीना में तबाही मचा चुके, जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का में इन्होंने इस कदर तबाही मचाई कि सहाबा इकराम को रस्सियों में बांध के सहाबा की दाढ़ियां नोच ली, एक एक दाढ़ी नोच ली सहाबा की। और जब हरम में आए जहाँ पर क़िताल हराम है, लेकिन उस हरम में काबा के गिलाफ को उतारा गया। उतार के हरम की सरजमीन में काबा के गिलाफ पर आग लगा दी यजीदियों ने। यही पर बस नहीं किया, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने डटकर मुकाबला किया और इन तमाम लोगों को और यहाँ इब्न वलीद मक्का की सरजमीन में उसके बेटे को, उसने इमाम हुसैन के तारीफ में 2 जुमले किए तो उसको गिरफ्तार कर लिया। उसकी माई छोड़ाने कि मेरा एक बेटा है उसको छोड़ दीजिए। तो अम्र इब्न वलीद ने कहा कि तुम जिंदा हो क्या ये तुम्हारे भलाई के लिए काफी नहीं है? तो उसने इशारा किया और उस बूढ़ी औरत के बेटे को जो है शहीद कर दिया। उस औरत ने कसम खाई कि जब तक मैं इसकी लाश को जिंदा जला नहीं दूंगी, मैं जमीन से उठ नहीं सकती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की सरबराही में जब ये तमाम लोग जो है दाएं बाएं हुए तो अम्र इब्न वलीद जब कब्र में डाला गया तो उस बूढ़ी औरत ने उसकी कब्र को खुदाया और खुदाने के बाद जब उसके नाक की मिट्टी हटाई गई तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप उसकी नाक की हड्डी से घुसा हुआ जिस्म को चूस रहा है। और जब पैर की तरफ खोदा गया तो क्या देखती हैं कि वहां पर भी एक सांप फंस रहा है। वो सही था, गई अपने घर और वहां पर वजू किया, 2 रकात नमाज की और दुआ करने के बाद आई तो वो सांप हट चुके थे। निकाल के जिसने सहाबा की दाढ़ियां नोची थी, निकाल के उनको जो है आग के हवाले कर दिया और जो है मरने के बाद धूप को जला दिया उस दिन पर। यही पर बस नहीं हुआ मुसलमानों। और यजीद जो दमिश्क की सरजमीन पर था, मरते वक्त 21 साल की उम्र थी, मरते वक्त लौंडा था। लौंडा वो इमाम रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था कि अल्लाह 60 हिजरी
के लौंडों की हुकूमत से पनाह दे। तो साहिबीन के लौंडे कौन थे? यजीद था, जब 21 साल की उम्र में मरा, जिस्म में दर्दिया पैदा हुआ, बदबू पैदा हो गई। जब मरा तो उसने क्या जुमला बोला? ये 2 से 3 महीने की जो हुकूमत मैंने की है, सिर्फ 3 महीना, बाद रिवायतों में 2 आया है, सिर्फ इस 2-3 महीने की हुकूमत में मैंने कभी भी सुकून नहीं पाया। और उसको सुकून मिलेगा कैसे जो नबी के नवासों का कातिल हो? अल्लाह अकबर। उसके बाद उसके तख्त पर यजीद का बेटा माविया बैठा, जो नेक था, परहेजगार था। जब उस कुर्सी पर बैठा तो फौरन उतर के खड़ा हो गया और उसने कहा कि इस तख्त से नबी के नवासों के कातिलों की बू आ रही है। और वो एक कमरे में घुसा और चीख मारी और कई दिन के बाद खोला गया तो इंसान हो गया। और कूफा की सरजमीन पे हालात तब्दील हुए। अमदी का वक्त आ रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की सरबराही में एक शख्स खड़ा हुआ कूफा की सरजमीन में, जिसका नाम मुख्तार सखती है। उसने चुन चुन करके जो है कहा कि हम कातिलान करबला का बदला लेंगे। चुन चुन करके उसने हुरमला को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, शिम्र को, खूली को, तमाम लोगों को जिसने बेदर्दी के साथ मौत दिया। लेकिन आखिर में जब खुदा दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। तो उसने भी नबूवत का दावा किया और इस्लाम से खारिज हो गया। इसके बाद तमाम ये फिर जो है खिलाफत अमवी, हमारे इब्न अब्दुल अजीज और खिलाफत अब्बासिया, ये तमाम तरह की तारीखें फिर बनी। इन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतें की। आपने इन सब चीज़ों को मुलाहजा कर लिया। जरा सोचिए मुसलमानों कि मैं एक मुहर्रम हराम से इतनी तारीख आपको बता डाला। इस बताने का मकसद क्या है कि सिर्फ कान खुश हो जाए? नहीं। क्या इसके बताने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन पर जुल्म किया गया? नहीं। क्या इसके बताने का मकसद ये है कि इमाम हुसैन मजबूर थे? नहीं। बल्कि बताने का मकसद ये है कि जब दिल पर कोई भी जुल्म ज़बरदस्ती के पहाड़ आए, उनको हुसैन की तरह खड़ा होना है। इमाम हुसैन ने ये दर्द दिया है करबला की सरजमीन पर कि जिस तरह मैंने दीन मुस्तफा के खातिर अपने बच्चों को शहीद कराया, ऐ लोगों, तुमको भी दीन मुस्तफा की इस्तिकामत के लिए खड़ा होना है। वो हुसैन जिनके कांधों पर दीन है, वो नबी जिन्होंने दीन को उजागर किया, वो मुस्तफा जिनके नवासों की जान पर हम अपनी जान को कुर्बान करें, लेकिन उन्होंने अपनी जान लुटा करके इस्लाम को हरा भरा कर दिया। और आज जब कोई फर्द इस्लाम को अपनी जिंदगी दे देता है तो अल्लाह उसकी मोहब्बत पूरे दुनिया के लोगों के दिलों में बिठा देता है। उलमा को ले लो, औलिया इकराम को ले लो, ख्वाजा गरीब नवाज को ले लो, हज़रत गौसे आज़म को ले लो, इमाम अहमद रज़ा को ले लो। जिसने अपनी जिंदगी दीन मुस्तफा के लिए निछावर की, अल्लाह ने उनका नाम दुनिया में उजागर करवा दिया। और जो दीन मुस्तफा के खिलाफ थे, आज उनका नाम बुराई से लिया जा रहा है, लेता जा रहेगा। लिहाजा ये करबला की दास्तान हमें ये सहर सबक यही दे रही है कि किसी भी हालत में रहो, वल्लाह तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना। और मैं ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ, याद रखिए, आप सब हमारे बिरादरी के सितारे हैं, आपकी माएँ हमारी माएँ हैं।
के जरिया, गुफ्तगू के जरिया, कॉलेजों के जरिया आज ईमान पे हमला किया जा रहा है। और जो इस्लाम किसी को ये नहीं कहता कि तुम किसी की बेटी को नाचते हुए देखो, आज उन्हीं की बेटियों को सरेआम नचाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, माँ बाप उस पर ताली बजा रही है। ये ईमान का जनाजा निकल चुका है लोगों से। इसी चादर की खातिर हज़रत ज़ैनब ने कैसा सब्र सहा है। इसी चादर के खातिर हज़रत मिर्ज़ा और शहबानों ने कितने जुल्म सहे हैं। कभी हमने उस पर सोचा मुसलमानों? नहीं सोचा। और दीन को बचाया हुसैन ने, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने, इमाम अहमद रज़ा ने। हमको तो ठंडी में मिल गया। हमने कौन सी मुसीबतें सही हैं? करबला की तरह अगर कोई मुसीबत आई हो तो बताओ। तुम पर तो मुसीबतें रिश्तेदारों से आ रही हैं। मलाने ऐसा है, लिहाजा मामला गड़बड़ होगा। ऐसे ऐसी चीजें पेश आ रही है। लिहाजा मेरी दुआ यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं मालूम ये महफिल कब से शुरू की गई, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज इस महफिल पर रंगे हुसैन छा चुका है। और इमाम अली मकाम का सदका मैंने देखा कि ये 10 दिनों में लोगों के दिलों में इस कदर मोहब्बत है कि लोगों से जितना हो रहा है वो ला ला करके शिरनी बता रहे हैं। यादा है इमाम अली मकाम और हमारे झंडापुर की सरजमीन पर भटपुरा की सरजमीन मैं तो एक ही मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कोई कमी नहीं है। और हमारे सबसे आज़ीम हस्ती बिरादरी की हजरत जलवा फरोज हैं। और न हाफिजों में, आलिमों में, मुफ्तियों में किसी भी की कमी नहीं है। लिहाजा अगर कोई मसला हो तो कुरान की आयत पर अमल किया करें। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम न जानते हो तो फौरन इल्म वालों से पूछो। अक्ल के घोड़े मत दौड़ो। और जब अक्ल का घोड़ा दौड़ता है तो वो घोड़ा अंधा होता है। उस घोड़े को आंख देने वाले भी तो उलमा की जात है। लिहाजा उलमा की बारगाह में तुम्हें आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में उलमा के मोहताज होते। ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, मुहर्रम आ रहा है, फना आ रहा है, घूना जा रहा है। हजरत चलिए फातिहा कर दीजिए। में जब तक चलेंगे नहीं, पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे भी मामले पेश आ रहे हैं। अरे कम से कम हमको ये सीख लेंगे फातिहा किस तरह किया जा रहा है। हमें ये सीख लेना चाहिए कि माँ बाप का जनाजा कैसे पढ़ा जाएगा, बारी की दुआएं क्या है, नवारी की दुआ क्या है, मर्द औरत की दुआएं क्या है। लिहाजा ये तमाम चीजें तो हम सीख ले। एक मर्द जो है जमीन से रुखसत होता है, जिसके 4 बेटे 5 बेटे हैं, लेकिन 5 को जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं है। अल्लाह अकबर। हमने अपने औलादों को इंग्लिश की तालीम इतनी दे दी कि वो तो अंग्रेजों को पढ़ा दे, अच्छी बात है, लेकिन हमने दीन मुस्तफा इतना नहीं पढ़ाया कि बाप का जनाजा पढ़ा सके। यह अफसोस है, दादा का जनाजा खड़ा हो, पोता खड़ा, बाप का जनाजा हो, बेटा खड़ा हो। जो दुआएं इनके दिलों से निकलेंगी किसी के दिल से नहीं निकलेगी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर कोई इंसान यूपीपी में, मिलिट्री में, डॉक्टरी में, वैकेंसी में, तमाम तरीके की चीज़ों में अगर वो पासिंग निकाल दे, मिसाल के तौर पर पुलिस हो गया, इंजीनियर हो गया, मिलिट्री में हो गया, डॉक्टर हो गया, या कहीं भी सरकारी ओहदे पर हो गया, ये मुबारकबाद पर मुबारकबाद, पूरा गुरुपाठ गाँव का भर जाएगा। ये मुबारकबाद, अल्लाह अकबर, मुबारकबाद, मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं। लेकिन इज्जत का जनाजा निकल जाता है उस वक्त जब कोई मोहल्ले में एक आलिम इल्म मुस्तफा की दस्तार लेकर के आता है, जब कोई हाफिज
اپنے دل میں قرآن کو پھنسا کے آتا ہے، لوگوں کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس کو 10 روپئے کا مسافہ بھی نہیں کر پا رہے، مبارکباد دے رہے ہو تم، اور وہ تمہیں پلک کے 10 روپئے دینے والے نہیں ہیں۔ یہ علماء جب بارگاہ میں آئیں گے تمہارے، بغیر کسی لالچ و طمع کے فاتحہ بھی دیں گے، درود بھی پڑھیں گے، ماں باپ کے بخشش کی دعا بھی کریں گے، ان کے زمینوں پر عیش تم کرو اور فاتحہ آ کے دے علماء۔ یہ افسوس ہے مسلمان، یہ دور چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا برادری کی سرزمین پر نہ جانے کتنے عالم مفتی فارغ ہو رہے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر 1-2 قاضیوں کی بات الگ ہے، 90% قاضی تو صرف چاند نکال رہے ہیں، بس ایک کا چاند نکل رہا ہے، بقرعید کا چاند نکل رہا ہے، اور چاند نکالنے کے علاوہ ان کو فرصت نہیں ہے کہ میرے ضلع کے اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں، کون سا مدرسہ قدم پڑا ہوا ہے، کن سالم کا انتقال ہو رہا ہے، کن حافظ کا انتقال ہو رہا ہے، ایک جنازے میں شامل ہو نہیں رہے آج کے زمانے سے۔ یہ خوش آمدیدی نہیں ہے، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر کوئی قاضی اپنے علاقوں کا دورہ کرے تو بتاؤ کیا بدعقیدہ پڑ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ کیا بدعقیدگی ان کے دلوں میں آ سکتی ہے؟ نہیں آئے گی۔ اگرچہ کسی ہی کے گھر میں آؤ، لیکن پورے گاؤں میں چرچا مچ جائے گی کہ آج فلاں شہر کے قاضی آئے تھے، اس مسئلے پر بات ہوئی ہے۔ لیکن آج اتنی خاموشی چھائی ہے کہ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ یہ بولیں گے تو مثال گر پڑے گی، ایسا لگ رہا ہے مجھ کو۔ لہٰذا علماء کو بولنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ غلط ہے تو غلط کا جواب دو، صحیح ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ صحیح ہے، غلط ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ غلط ہے۔ لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی عادت جی حضوری کی، یہ سر ہر در پہ جھک جائے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور علماء کو کبھی غلام نہ سمجھنا، یہ علماء تمہارے دین کے رہبر ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں یہ پکڑ کے جنت کا راستہ دے دیں گے۔ آخری اختتام ہو چکا، یہ نصیحت کلمات جو آپ کے سامنے میں نے بولے، اللہ رب العزت اس 10 دنوں میں جو چیز بولی گئی پڑھی گئی، اگر اس میں کسی طرح کی خطائیں لغزشیں واقع ہوئی ہوں، اللہ کی رحیمی کریمی کے سچے توسط سے ان تمام خطاؤں کو بخش دے، اور ہم سب کو امام عالی مقام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔